Keep enjoying and learning the solving sums of chapter 1, and along with that some tricks to remember the table. Yesterday, as I told you, the table is very important for the crystal lattice. So trick to remember the table. Now we'll just go through the tabletop and I'll explain you the numericals. Trick to remember और ट्रिक टू कैलकुलेट द फॉर्मूला. पहले मैं आपको ये ट्रिक्स दिखाती हूँ और फिर विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. Trick to calculate the formula of unit cell. Student, yesterday we have taken the 6 parameters. On that 6 parameters, A, B, C and the angle between the length, breadth and height. So here I am just showing you that this is our corner atom. This is the corner atom. Here this is the edge center atom. Edge center atom. I am showing you this on only the one side, so it is very clear to you. This is the face diagonal. Face diagonal. Here on the center of the face, this is known as face center. Face center. Hope so students, you are clear with this. And here on the center of the body is body center. This is body center. So this corner atom on one edge, that is edge center, on that face, this is a face center atom, and this is the face diagonal, and this atom is as a body center. Now as you know, yesterday we have counted, but then also we have to find the formula or we have to solve the sum or numericals. So this is to keep in your mind and you have to keep it in on your study table. So whenever you are sitting for solving the sum, this is in your mind and on the table. So it is easy for you to get the answer. Now the first point, we are finding the number of
corner atom. So number of corner atom, as yesterday we know, total 8 corner atom are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And it is shared by 1 by 8. So that's why it is 1. So we suppose as a corner atom, suppose for the formula, we suppose it is as a A. Then number 2, that is a number of phase center. Number of phase center. How many phases are there, students? 1, 2, 3, 4, fifth in the front and sixth at the back. So total 6 phases shared by 1 by 2. So here this is equal to 3 and we suppose it as a B. We suppose it as a B. Now we'll go to the age center. We'll go with the age center. Now for the age center, total we have a 12 atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So total 12 atom for the age center shared by 1 by 4. So is equal to 3. That we'll suppose as a C. And the fourth one is that body center. This is our body center. As we know, body center is 1 only and shared with only 1. So 1 into 1 is equal to 1 and we suppose it as a D. Now the question is, now I am asking you the question or I am writing the question here only. So you also write down in your notebook along with me. In a cubic unit cell, atom A in the corner, atom A in the corner, B is a phase center, C at the age center, C at the age center and D is at body center. D at body center. अब इसके बेसिस में हमें ये जो क्यूबिक है उसकी फॉर्मूला फाइंड करनी है स्टूडेंट. तो यही डायग्राम जो था हमारा, उसमें ये ए जो है वो कॉर्नर पे है, फेस सेंटर ये बी दिया हुआ है, एज सेंटर सी दिया है एंड बॉडी सेंटर को डी दिया हुआ है. अब हमें पता है कि हमारे पास में कॉर्नर में कितने एटम है टोटल. तो कॉर्नर इज विद द 8 इज इक्वल टू 1 एटम. तो यहां हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू corner
A is equal to corner and is equal to, here we know 1 atom. So is equal to 1. The same way B is given for the face center. B is given for the face center. So B is equal to face center. In the face center, total how many atoms are there? 3 atoms are there. So face center is equal to 3. Then C is given to the edge center. So here we'll write C is equal to edge center. And edge center also we know how many number of total atom are there. Edge center is with the 3 number of atom. So is equal to also 3. And the D is given to the body center. So here we'll write D is equal to body center. And how many number of atom for the body center? It is 1. So D is equal to body center and is equal to 1. Now we have to write down the formula for the same. So आंसर क्या मिला हमें? कॉर्नर में है A1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. B is equal to 3, C also is equal to 3, and again D is equal to 1. So this is the answer of the question which I ask you. Now we'll go with the second question. Second question, here in place of the atom, percentage is given. A is in the corner, B is in the face center. उसके बदले में A इतना परसेंटेज है, B का इतना परसेंटेज है, वो दिया हुआ है. So you have to write down the question number 2. A is equal to 25%. A is equal to 25%. B is equal to 50%. And C is equal to 75%. Is to be removed from the formula. Now student, question में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया. मैंने ये परसेंटेज तो दिया, पर क्वेश्चन में मैंने अब क्या पूछ रही हूँ, ए में से 25% निकालो, बी का 50% रिमूव करो एंड सी का 75% removed. Now you have to find the formula. So अब क्वेश्चन तो वो ही रहा है, सिर्फ थोड़ा सा उसको चेंज किया है. अब ए हमें पता है, ए जो है हमारे पास में कॉर्नर, तो यहाँ जो 25% निकालने की बात हो रही है वो किस में से निकालना है? वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर. सो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? टोटल 8 है, वो 8 में से हमें कितना निकाल देना है? 25% निकाल देना है. सो 8 परसेंटेज दिया है स्टूडेंट्स, सो वी मल्टीप्लाई 25 by 100, क्योंकि परसेंटेज को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है. सो हियर यू आर विद द आंसर 2. So for the A atom, total 8 are there. Out of 8, how many you are removing? 25% means 2 atom you are removing.
So here total 8 atom for the corner. Out of that 8 you are removing 25%, means 2 atom you are removing, and then you are sharing that remaining atom you are sharing with 1 by 8. That atom you are sharing with 1 by 8. So therefore 8 minus 2, 6 into 1 by 8. So now here your answer is 3/4. स्टूडेंट्स ये सिंपल कैलकुलेशन तो मैं यहाँ आपको करके नहीं दिखाऊंगी. दिस यू आर वेरी वेल वर्स अबाउट दैट. द सेकेंड, बी में से कितना परसेंटेज निकालना है? 50% निकालना है. सो नाउ वी नो व्हाट इज बी. टोटल फेस सेंटर एंड दे आर टोटल 6 नंबर. सो हियर विल राइट बी. बी इज इक्वल टू टोटल 6. 6 में से आपको 50% रिमूव करना है. सो 6 मल्टीप्लाई 50 upon 100. So now here what is your answer? 3. Now what you have to do? You have to subtract this 3 because you have removed 50%. तो 6 में से 3 माइनस करेंगे और फिर उसको शेयर करेंगे 1/2 के साथ. So 6 minus 3 shared by 1/2. So here you are with the 3 into 1/2. So your answer for B atom is 3/2. Now we'll go with the third one. How much third you have to remove? You are removing third, means you are removing the C, that is 75% you are removing. So student, C हमारे पास में क्या है? C is a एज सेंटर. एज सेंटर में आपके पास में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है? 12 एटम है. तो यहाँ पर हमें लिखना है 12 नंबर ऑफ एटम. C is equal to 12 number of atom. That 12 number of atom कितना परसेंटेज रिमूव करना है आपको? 75. So 75 divided by 100. Now here your answer is 9. Your answer is 9. तो अब आपके पास में टोटल 12 एटम थे एज सेंटर में, उसमें से आपने 9 एटम जो है वो रिमूव कर दिए हैं. मीन्स 12 minus 9 and it is shared by how many? स्टूडेंट एज सेंटर जो था C है वो शेयर्ड बाय 1/4 है. तो यहाँ पर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 से. सो 12 minus 9 multiply by 1/4. So what is your answer for this? Is equal to 3 into 1/4. So C के लिए आपको आंसर मिल रहा है 3/4. So now we have to write down the formula for the same. A 3/4, B 3/2, C 3/4. स्टूडेंट यहाँ D के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है, इसलिए हम D को 1 सपोज करेंगे.
क्योंकि डी में से कितना रिमूव करना है वो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, बट वी आर विद द डी एटम दैट इज अ बॉडी सेंटर ऑल्सो, सो डी हम 1 एज्यूम करेंगे। अब ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये तो होल नंबर है ही नहीं, तो इसके लिए नाउ सॉरी C 3/4। अब इसके लिए होल नंबर नहीं है तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 4 and 2 एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, उसका एलसीएम हम लेंगे। आपको एलसीएम तो देना सिखाना नहीं चाहिए मुझे, आपको आता ही है। 2 and 4 का एलसीएम क्या आएगा, सो 4 इज अ एलसीएम फॉर द सेम। तो यहां हम करेंगे A 3/4 into 4, B 3/2 into 4, C 3/4 into 4 and D 4, क्योंकि D है हमारे पास में 1, तो 1 into 4। सो अब इसके ऊपर से आपको आंसर पता चल गया स्टूडेंट्स। 2 2s are 4, here 4 cancel, so the formula for this question is A3 B3 C3 B6 रहेगा, 3 2s are 6, B6 C3 and D4. This is the formula for second question. Now we'll go with the third question. Now third question. Third question के लिए I'm just dictating the question. You write down. In a cubic unit cell, जो आगे हमने लिखा था वही A at the corner, B at the face center, C at the edge center and D at body center. If you remove one edge from the atom, remove one edge. Now student, this is the very important part. करना क्या है, कितना परसेंटेज है वो भी नहीं दिया है, कौन कहाँ है उतना बताया है आपको, पर उसमें से कर क्या रहे हो, एक एज पूरी रिमूव कर रहे हो आप। तो अब वो एक एज रिमूव करने से कौन कौन से सेंटर वाले एटम रिमूव होते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले ये जो आपका क्यूबिक सेल है, वो क्यूबिक सेल में से कोई भी एक एज, सपोज में ये जो एज है वो एज रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दिया है दिस एज इज टू बी रिमूव्ड। सो ये एज में क्या क्या आया, तो ये एज में एक ये और ये दोनों कौन से एटम है आपके, ये दोनों है आपके कॉर्नर, ये है कॉर्नर, यहाँ भी ये है कॉर्नर। दूसरा क्या रिमूव हो सकता है यहाँ पर से, ये है आपका
एज सेंटर, दूसरा आपका क्या रिमूव हुआ, एज सेंटर। एज सेंटर का कितना एटम आप रिमूव कर रहे हो, 1। सो एक एज रिमूव करने से हमारे पास में 2 कॉर्नर के एटम रिमूव होते हैं एंड एक एज सेंटर का एटम रिमूव होता है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, आपके पास में जो आगे हमने पढ़ा था वो तो है ही कि एज सेंटर उसमें से 8 है। टोटल एज सेंटर में कितने हैं हमारे पास में, ए इज इक्वल टू कॉर्नर, तो कॉर्नर में आपके पास में है 8। अब 8 में से आप कितने रिमूव कर रहे हो, 2 रिमूव कर रहे हो। एक पूरी एज रिमूव हो जाने की वजह से ये 2 कॉर्नर एटम रिमूव हो गया। सो यहाँ पर आपके पास में रहा टोटल 6। अब वो जो 6 है उसको आपको किससे शेयरिंग कर रहे हैं, कॉर्नर एटम कितने से शेयरिंग कर रहे हैं, तो 6 इंटू 1/8। तो यहाँ भी ए के लिए आपका आंसर मिला है 3/4। अब दूसरा जो है वो क्या रिमूव हो रहा है, एज सेंटर रिमूव हो रहा है। तो एज सेंटर है हमारा सी। तो टोटल एज सेंटर कितने हैं हमारे पास में, टोटल एज सेंटर हमारे पास में है 12 एज सेंटर में से हम एक एज सेंटर को रिमूव कर रहे हैं। तो -1 कितना बचा, 11। अब एज सेंटर स्टूडेंट्स कितने के साथ में शेयर कर रहा था, तो 1/4 के साथ में। तो एज सेंटर का आपका आंसर मिला 11/4। अब यहाँ पर पूरी एज निकालने से सिर्फ ये 2 ही एटम रिमूव हो रहे हैं, बॉडी सेंटर भी रिमूव नहीं हो रहा है और फेस सेंटर भी रिमूव नहीं हो रहा है। तो बी और डी जो है उसे हम एज इट इज 1 कंज्यूम करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बी के लिए टोटल कितने एटम है आपके पास में, बॉडी सेंटर के लिए आपके पास में 1 एटम है, जिस और फेस सेंटर के आपके पास में 3 एटम है। सो बी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं, तो ए मिला 3/4, बी कितना है आपके पास में, बी इज इक्वल टू 3। सो बी 3, सी कितना है 11/4, सी 11/4 एंड डी कितना है 1, तो डी 1। अब सेम वे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम रहेगा 4। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलसीएम द फॉर्मूला फॉर दिस इज A3, 3 4s are 12, B12, C11 and D4। स्टूडेंट क्लियर है आपको, मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए। अब उसी के हिसाब से एक और चौथा क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4, जो थर्ड क्वेश्चन था वो ही थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में हमने एजेस रिमूव किया था, नाउ यू हैव टू रिमूव द फेस। रिमूव फेस, अगर पूरे क्यूबिक में से एक फेस निकाल देते हैं तो। सो जस्ट आई एम ड्रॉइंग अगेन द क्यूब।
अब निकालना क्या है, पूरा फेज निकालना है। तो ये पूरा पोर्शन निकाल देना है हमें। तो ये पोर्शन में क्या क्या आएगा हमारे पास में, तो ये जो है 1 2 3 और 4, ये 4 क्या है स्टूडेंट, दिस 4 आर द कॉर्नर। कॉर्नर है। अब यहाँ पर एक आपका फेस सेंटर भी आया हुआ है, सो यू आर रिमूविंग वन फेस सेंटर ऑल्सो। नाउ एज सेंटर 1 2 3 4, दिस आर योर एज सेंटर। सो आप एजिस में से भी 4 एटम निकाल रहे हो। पूरा एक फेज निकल जाने से कॉर्नर के 4 एटम निकलते हैं, एक पूरा फेज सेंटर निकलता है और 4 जो है वो एज सेंटर निकलते हैं। तो अब ऑन द we'll do the formula as per this calculation. A is equal to, टोटल A होता है 8, उसमें से आपने 4 निकाला और उसको शेयर करते हो 1/8 के साथ में। सो दैट इज 4/8 इज इक्वल टू 1/2। अब B जो है आपका, वो B है हमारा फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में से आप यहां से एक फेज निकाल रहे हो। सो टोटल फेज सेंटर होता है हमारा 6 -1 किया और शेयरिंग होता है 1/2 के साथ में। तो यहां आपके पास में मिला 5/2। अब सी क्या है हमारा, एज सेंटर। यहाँ पर आप कितने एज सेंटर निकाल रहे हो, 1 2 3 एंड 4, और टोटल एज सेंटर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, टोटल एज सेंटर आर 12। सो 12 में से आप 4 रिमूव कर रहे हो और एज सेंटर जो है वो शेयर्ड विथ 1/4। तो यहाँ आपके पास में है 8/4, तो इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। और डी के बारे में कुछ नहीं है क्योंकि डी बॉडी सेंटर में आया हुआ है, तो डी का हमारा जो आंसर है वो है 1। अब हम यहाँ लिखते हैं ए 1/2, बी 5/2, सी 2, डी 1। अब एलसीएम क्या रहेगा, 2। तो उसी के बेस पे आंसर हमारा आएगा A1, B5, C1 and D2। So this is the answer. Hope student you are clear with the solving this type of sum.
This some are asking in the competitive exams also and even Gujarat board exams also. Now write down the homework question. I'm just dictating the homework question. You write down, then we'll go with the next part, that is the remember the trick for the yesterday's table which we have studied. Write down the question. If all atoms from the body diagonal is removed, क्वेश्चन 3 को बाकी के पार्ट एज इट इज रखेंगे हम और सिर्फ वहां से रिमूव करना है डायगोनल में से. तो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द रिमूविंग द डायगोनल. फोर्थ वन, atom of element B form HCP lattice, A occupy 2/3 of tetrahedral void. Next question. Compound made from ABC atom, A form CCP, B octahedral void, and C occupy 2/3 of tetrahedral void. Find the ratio of A, B and C.